Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So after the discussing of our external genitalia, okay, so let's learn regarding the internal genitalia, okay. So in the previous class we have seen the regarding the external genitalia, the structures of the external genitalia, the function of the external genitalia, okay, the glands of the external genitalia, okay. So these are the terminology, or these are the parts, or these are the topic we have covered in the previous class. In the uh, today's class we will discuss the internal genitalia, okay, which is the most important part, or most important particular structures which come under in the category of female reproductive system, okay. Internal genitalia is nothing but the sex organs or the sex structures of the female body that present internally, okay, that we can't see our with our naked eye. As I earlier said, the external genitalia, the structures, the sex structures, what we can see by externally by our eyes, okay, that is called as a external genitalia, okay, that present externally. But internal genitalia is a structures which present internally, okay, internally to the pubic cavity, okay, that we not able to see that particular structures, okay, that is nothing but internal genitalia, okay. Genitalia means the sex structures or sex organs, okay. So internal genitalia consists of vagina, uterus, fallopian tube and ovaries, okay. These four things only consist of in our internal genitalia, okay. So in detail manner we will discuss one by one, with continue with our vagina, then uterus, then fallopian tube and the ovary, okay. We will go with downward to upward, okay. So this what the diagram you are seeing here, okay, इस मैनर में एक फीमेल के बॉडी में फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम्स, इंटरनल फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम प्लेस नहीं रहते हैं, ओके. जो डायग्राम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ओके, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स और दैट वे, एक पर्टिकुलर दैट वे में क्या रहता है, फीमेल के अंदर वहाँ पे उनका रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स इंटरनली प्लेस हुआ रहता है. यानी कि जो उनका जो यूटेरस होता है ना, वो अल्टीमेटली एंटी वर्जन एंटी फ्लैक्शन के एंगल में प्लेस होता है, ओके. यानी कि वो स्ट्रेट नहीं होता है, ओके, वो वजाना के साथ में कुछ एंगल फॉर्म करके रखता है, ओके. तो एज यू बीइंग एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, लेट मी नो दैट इज़ नथिंग बट कि जो स्ट्रक्चर्स जैसा आपको ये विजिबल हो रहा है, जस्ट ये डायग्राम के लिए आपको मैंने बताया है, ओके. दैट इज़ नॉट अ रियल डायग्राम. रियल अगर आप देखोगे किसी फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के बॉडी में, वहाँ पे अगर आप कोई स्पैकुलम एग्जामिनेशन से अगर देखोगे ना, जो यूटेरस होता है ना, यूटेरस अल्टीमेटली स्ट्रेट नहीं होता है. दैट इज़ नॉट 180 डिग्री विथ आवर वजाइना, दैट इज़ 90 डिग्री, ओके. ऐसा जो यूटेरस होता है वो टर्न होता है, ओके. सेमी नॉट सेमी, वी आर टर्मिंग दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंटी वर्जन, ओके. एंड बाद में वहाँ पे एंटी फ्लैक्शन, ये दो एंगल फॉर्म करके रखता है हमारा क्या पर्टिकुलर यूटेरस, ओके. तो अल्टीमेटली एक एक हम डिस्कस करेंगे. इंटरनल जेनिटलिया में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है ऑर्गन, दैट नथिंग बट वजाइना, ओके. वजाइना क्या है, अल्टीमेटली ये ट्यूब है, ओके, विच जिनको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं. मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि अल्टीमेटली फॉर्म बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ओके. दो वॉल होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल. एंटीरियर वॉल की जो लेंथ होती है अल्टीमेटली 7 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की जो लेंथ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, ओके. देन सिक्रेशन, कौन कौन से सिक्रेशन अल्टीमेटली वजाना हैज़ अ मेनी ग्लैंड्स, ओके, विच सिक्रीट देयर सिक्रेशन. द टाइम ऑफ द सिक्रेशन इज नथिंग बट ड्यूरिंग द मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल और जस्ट prior to the menstruation, during pregnancy or during the sexual excitement, okay. These are the time period when the vagina produce their secretory secretion, okay. That is nothing but mid menstrual cycle, just prior to the menstruation, during pregnancy or during the sexual excitement, it produces their secretion, okay, because it has a numerous glands, okay. It has a numerous glands inside the particular vagina, okay. Vagina, it is a muscular tube, has two wall, anterior and posterior wall. एंटीरियर वॉल की जो लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की जो लेंथ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, ओके. एंड अल्टीमेटली इट कनेक्ट एंटीरियर विथ आवर सर्विक्स एंड पोस्टीरियर विथ आवर एक्सटर्नल जेनिटलिया, ओके. तो अल्टीमेटली सिक्रेशन मेनली डिराइव फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ द सर्विस
यूटेरस। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया इसका मतलब ये है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिक्रेशन में रोल प्ले करते हैं, जो कि सिक्रेशन करते हैं। ओके, तो सर्विक्स के अंदर बहुत ही ग्लैंड होता है, सर्वाइकल डिस्चार्ज जिन्हें हम बोलते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज जिन्हें हम बोलते हैं, वजाना की जो सिक्रेशन होती है उन्हें हम वजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। सर्विक्स की जो डिस्चार्ज होती है उनको हम सर्विक्स डिस्चार्ज बोलते हैं। ओके, यूटेरस के अंदर भी ग्लैंड होते हैं, यूटेराइन सिक्रेशन जिन्हें हम बोल सकते हैं। वजाना के एपिथेलियल में भी वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं। ओके, ग्लैंडुलर सिक्रेशन जिन्हें हम बोलते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, वजाइनल एपिथेलियम इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एपिथेलियम, यू ऑल नो दैट एपिथेलियम के फर्दर कैटेगरी होती है। इन दैट कैटेगरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम वाला जो कैटेगरी है वो वजाना के अंतर्गत रहता है, और अल्टीमेटली दैट ग्लैंडुलर हैज़ अ ग्लैंड्स विच सिक्रीट द सिक्रेशन दैट इज कॉल्ड एज अ वजाइनल सिक्रेशन, दैट इज ऑल्सो टर्म एज वजाइनल डिस्चार्ज। ओके, तो वजाइनल डिस्चार्ज का 4 टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, ड्यूरिंग द मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट प्रियर टू द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। वजाइनल डिस्चार्ज और वजाइना secrete their secretion in the form of discharge. Okay, so here you can see the diagram. Okay, I am zooming the same diagram for you. Okay, so ultimately this is the tube, muscular tube has a two wall. Okay, anterior wall and posterior wall. posterior wall की जो लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर होती है, anterior wall की जो लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर होती है। ओके, and ultimately it connect with our ये देखिए जो मैं ये एंगल की बात कर रहा था, हमारा जो यूटरस होता है वो 90 डिग्री के 180 डिग्री में कंटिन्यू नहीं होता है, ये एंटी वर्जन और एंटी फ्लैक्शन के थ्रू से 2 एंगल फॉर्म करता है हमारा यूटरस, एंड अल्टीमेटली दैट एंगल के साथ में हमारा ये पर्टिकुलर वजाना के साथ में अटैच होता है। ओके, तो दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ द आवर यूटरस। व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ हियर, that is nothing but vagina. Vagina, it is a muscular tube. It connect with the anteriorly, it connect with the cervix, and posteriorly it continue with our external genitalia के part. Okay, vaginal epithelium इसके अंदर रहता है, stratified vaginal epithelium ultimately form vagina it formed by stratified epithelium, glandular epithelium has a glands and then ultimately secrete their secretion, that is called as a vaginal secretion. Okay, वजाइनल सिक्रेशन के साथ साथ अल्टीमेटली आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट नथिंग बट वजाइना अल्टीमेटली वहाँ पे एक सीवियर एसिडिटी कंडीशन मेंटेन करके रखता है। ओके, अगेन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ओके, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन टू रीच अप टू द यूटेरस। ओके, तो अल्टीमेटली वजाइना सिक्रेट द एसिडिक सिक्रेशन। ओके, वजाइना सिक्रेट द एसिडिक सिक्रेशन, so that acidic secretion is secreted by our how it secrete, तो अल्टीमेटली ग्लाइकोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू द लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एस्ट्रोजन। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इन द स्क्वामस सेल्स, ओके, टू लैक्टिक एसिड बाय डोडालाइन वेसिलाई। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि एसेंशियल बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, तो एसिडिक सिक्रेशन अल्टीमेटली ये कौन सिक्रेट करता है, हमारा वजाना सिक्रेट करता है, एंड ड्यू टू दिस एसिडिक सिक्रेशन होता है कि जो न्यूमरस जो स्पर्म होते हैं ना, दैट डाई इन द पर्टिकुलर वजाइना। ओके, एंड आउट ऑफ द मिलियन स्पर्म ओनली देर आर कुछ नंबर रहता है, कुछ 100 नंबर और कुछ ऐसे नंबर बताया गया, दैट नंबर रिचेस अप टू द ओवम ओनली। ओके, acidic pH is prevent growth of the other pathogenic hormone, as I said, become a slightly alkaline in menses, अल्कलाइन हो जाता है ड्यूरिंग द मेंसेस, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इनकी जो सिक्रेशन होती है वो अल्कलाइन सिक्रेशन हो जाती है, वो सिक्रेशन ड्यूरिंग द एसिडिक सिक्रेशन अलग टाइम पे, अल्कलाइन सिक्रेशन अलग टाइम पे। अल्टीमेटली अल्कलाइन सिक्रेशन जो है वो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड बिफोर एंड आफ्टर रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। ओके, वो जो उनकी सिक्रेशन होती है वो अल्कलाइन सिक्रेशन होती है। ओके, नाउ यहाँ पे जो टर्म लिखा गया फॉर्निसेस, फॉर्निसेस मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली फॉर्निसेस मतलब एंगल्स होते हैं। ओके, वजाना जो अल्टीमेटली जो हमारे सर्विस के साथ जो अटैच है उनमें जो एंगल्स है और जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट मतलब जो ये
उभार जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ओके, इनको हमने क्या बोला, एंटीरियर फोनिक्स, एंटीरियर फोनिसिस। ये मेरा क्या है, पोस्टीरियर फोनिसिस। ऐसे ही 2 लेटरल फोनिसिस पोस्टीरियर के साइड में रहते हैं, ओके। देयर आर 4 फोनिसिस, एंटीरियर, posterior and 2 lateral fornices, okay. Fornices that nothing but cleft, okay. If we talking about the function of vagina, function of vagina क्या करेगा, स्पर्म को यहाँ से अल्टीमेटली यूटरस तक पहुँचाता है और यूटरस अल्टीमेटली सेंड्स द स्पर्म अप टू द फैलोपियन ट्यूब, एंड फैलोपियन ट्यूब में जो सिलियरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अल्टीमेटली एम्पुला के रीजन में पहुँचाता है हमारे स्पर्म को और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ कैनाल फॉर बर्थ पैसेज एज वेल, ओके। ड्यूरिंग द पार्चुरेशन जो फुल्ली मैच्योर जो बेबी होता है वो एक्सपेल्ड आउट होता है इन दिस कैनाल ओनली, ओके। तो अल्टीमेटली टू अलाउ द डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी सेम पाथ में होता है। मेंस्ट्रुअल ऑर्गन्स ऑफ फॉर कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्लेस भी है, and to allow passage of the fetus from the from the uterus, okay. Now we will see the uterus. Ultimately it is a second internal genitalia, okay. It is a second internal genitalia parts. तो यूटरस अल्टीमेटली ये होता क्या है, इट इज़ अ पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, ओके, पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम, ओके। ये मेरा क्या है, ये ब्लैडर है और ये रेक्टम है, ओके। रेक्टम जो अल्टीमेटली हमारे फीसेस को स्टोर करके रखता है और ब्लैडर जो हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये आप देख सकते हो डायग्राम, ये क्या है, पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है, कौन, हमारा यूटरस पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है विच प्रेजेंट बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम इन बैकवर्ड और इन पोस्टीरियरली, ओके। तो ये देखिए डेफिनेशन आप देख सकते हो, द यूटरस इज हॉलो, ओके, हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड द रेक्टम बिहाइंड, ओके। पोजीशन की अगर बात करें तो 2 एंगल फॉर्म करके रखता है, मैंने आपको जैसा बताया ही है कि वजाना के साथ में जो हमारा यूटरस होता है वो 180 डिग्री के साथ नहीं रहता है, वो कुछ एंगल के तरह एंगल फॉर्म करके रखता है, ओके। तो अल्टीमेटली वजाना जो है यहाँ एक पर्टिकुलर एक वजाना जो आपको दिख रहा है, और वजाना जैसे ही दिखता है ना, जो नेक ऑफ द सर्विक्स होता है, नेक ऑफ द यूटरस जिन्हें हम सर्विक्स बोलते हैं, अल्टीमेटली वहाँ से हमारा यूटरस टर्न हो जाता है, ओके। हमारा यूटरस जो होता है थोड़ा सा ऐसा टर्न इन दिस वे ऐसा टर्न होता है, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटीवर्जन बोलते हैं, ओके। ऐसा कुछ टर्न होता है, ऐसा कुछ टर्न होने के बाद ये जो बॉडी ऑफ द यूटरस है ना, ओके, वो बाद में फिर से टर्न होता है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 170 विथ सर्विक्स, ओके। पहला जो एंगल फॉर्म हो रहा था हमारे वजाना के साथ हुआ है और सर्विक्स के बीच में हुआ है, जो कि एंगल ऑफ एंटीवर्जन है, ओके, जो कि 90 डिग्री है। बट सेकेंड जो एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल फॉर्म हुआ है हमारे विथ दिस सर्विक्स एंड विथ आवर बॉडी ऑफ द यूटरस, ओके, जो कि अल्टीमेटली जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटीफ्लैक्शन बोलेंगे, जो कि अल्टीमेटली कितना है, 170 डिग्री है, ओके। तो आप क्लियरली देख लीजिए, जो हमारा वजाना और जो यूटरस का जो प्लेसमेंट होता है वो 180 डिग्री के साथ नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बिफोर स्टार्टिंग माई टुडेज क्लास मैंने आपको बताया, ओके। तो 90 डिग्री जिन्हें हम एंगल ऑफ एंटीवर्जन बोलेंगे, जो कि एंगल फॉर्म बिटवीन द वजाना एंड द सर्विक्स ऑफ द यूटरस, एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लैक्शन इट इज़ अ 170 डिग्री विच इज़ फॉर्म बाय आवर सर्विक्स ऑफ द यूटरस एंड बॉडी ऑफ द यूटरस, ओके। तो इसी एंगल के वजह से क्या होता है, जो हमारा यूटरस होता है ना, बॉडी ऑफ जो यूटरस होता है वो थोड़ा सा राइट साइड में चले जाता है, और जो हमारा जो सर्विक्स होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले जाता है, ओके। तो डेक्स्ट्रो रोटेशन, द यूटरस यूजुअली इंक्लाइन टू द राइट, डेक्स्ट्रो रोटेशन, ओके, एंड सो दैट जो सर्विक्स जो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले जाता है, ऐसा डायग्राम में दिखता है, ऐसा इंटरनली लेप्रोस्कोपिकली हमने देखा है, ओके। तो लीवो रोटेशन में अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में दिखता है, ओके। तो पोजीशन हमने देखा, द नॉर्मल पोजीशन इज वन ऑफ द एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लैक्शन, द यूटरस यूजुअली इंक्लाइन टू द राइट
डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड सो दैट द सर्विक्स इज डायरेक्ट टू द लेफ्ट, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेशन बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या देखा, इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच प्रेजेंट बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड rectum in behind, okay. Ultimately vagina is not contained with our uterus, okay, not with 180 degree. वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, ओके। एंगल ऑफ एंटीवर्जन फॉर्म बिटवीन द वजाना एंड सर्विक्स ऑफ द यूटरस एंड एंगल ऑफ द एंटीफ्लेक्शन फॉर्म बिटवीन द सर्विक्स ऑफ द यूटरस एंड द बॉडी ऑफ द यूटरस, ओके। मेजरमेंट एंड द पार्ट ऑफ द यूटरस इज नथिंग बट, अल्टीमेटली मैं आपको एक इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि जो यूटरस होता है ना, यूटरस के 4 पार्ट में हमने डिवाइडेड किया है, फंडस, बॉडी, स्टमस, ओके, स्टमस एंड सर्विक्स, ओके। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, वी हैव डिवाइडेड द यूटरस इनटू द नॉट yes, we have divided the uterus into the 4 part, that nothing but fundus, body, isthmus and cervix, okay. तो cervix it also called as the neck of the uterus, okay, neck of the uterus. तो अल्टीमेटली जो हमारा फंडस पार्ट है और जो बॉडी पार्ट है, ये दोनों को मिलाकर हम कॉर्पस भी बोलते हैं। और फंडस से लेकर सर्विक्स तक, लोअर बॉर्डर ऑफ सर्विक्स तक, इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी लेंथ होती है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 8 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। वी हैव डिवाइडेड द लेंथ, ओके। तो अल्टीमेटली फंडस का जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। बॉडी, ये देखिए इतना जो लेंथ है ये 1.5 सेंटीमीटर है। बॉडी का जो एरिया है जैसा कि आप देख रहे हो, ओके, ये जो है ये कैविटी है, ओके, ये हॉलो कैविटी होती है जिन्हें हम यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, जिनको हमने यहाँ पे ब्लू से डिनोट किया है। हमारा बॉडी वाला जो पार्ट है ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके, जो कि अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट विद द 3.5 सेंटीमीटर। तो बॉडी कैविटी जो है और बॉडी 3.5 सेंटीमीटर का होता है, फंडस 1.5 सेंटीमीटर का होता है। दोनों को मिलाकर जो हम बोलते हैं उनको हम कॉर्पस बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली 5 सेंटीमीटर का होगा एज टोटली, ओके। 3.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर इज टोटल विद द 5 सेंटीमीटर, ओके। स्टमक का जो पार्ट होता है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है हमारे यूटरस का। कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एज स्टमस, ओके, जो कि 0.5 सेंटीमीटर होता है। एंड लास्टली द लास्ट पार्ट ऑफ द यूटरस इज नथिंग बट नेक ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एज द सर्विक्स, जो कि अल्टीमेटली 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ओके, जिनकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो मेजरमेंट एंड द पार्ट ऑफ द यूटरस मैंने अभी आपको बताया। हमारा जो फंडस होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, इनमें कोई भी कैविटी नहीं रहती है, देयर इज़ नो एनी कैविटी फाउंड इन द फंडस पार्ट ऑफ द यूटरस, ओके। इट इज़ अ सॉलिड पार्ट जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, जिनकी लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। एंड लिविंग द फंडस, जितने भी पार्ट मैंने आपको बताया वहाँ पे कुछ कैविटी होती है, कुछ कैविटी दैट नथिंग बट जिनकी डायमीटर वेरिएबल होती है, ओके। बॉडी के यूटेरस का जो बॉडी वाला जो पार्ट है उनके अंदर जो कैविटी होगी उनकी डायमीटर दैट विल बी डिफरेंट। स्टमस के पास जो कैविटी है उनकी डायमीटर विल बी डिफरेंट एंड स्मॉलेस्ट डायमीटर जो कि रहेगी। यूटेरस का जो सर्विक्स का जो पार्ट है उनके अंदर भी जो कैविटी है, ओके, ये सभी को हमने क्या बोला, यूटेराइन कैविटी बोला है, ओके। तो बॉडी कैविटी बॉडी के पार्ट्स में, देन सर्विक्स की जो कैविटी होगी दैट विल बी इन सर्विक्स के पार्ट में, ओके। तो अल्टीमेटली लिविंग टू द फंडस, जितने भी यहाँ पे मैंने आपको यूटेरस के पार्ट बताया सभी में एक कैविटी होती है, ओके। एज टोटली वी कॉल दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द यूटेराइन कैविटी, ओके। द यूटेरस मेजरमेंट मैंने आपको बताया 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, ओके, 5 सेंटीमीटर वाइड एट अ फंडस। इनकी जो वॉल होती है, वॉल की जो थिकनेस होती है 1.25 सेंटीमीटर होती है, ओके। इनका वेट जो होता है, यूटेरस का वेट नॉर्मली 50 to 80 ग्राम होता है। एंड इनके पार्ट्स मैंने आपको बताया, बॉडी, ओके, जिनको हम कॉर्पस भी बोलते हैं। इन सम टाइम बॉडी एंड फंडस दोनों को मिलाकर हम कॉर्पस बोलते हैं, ओके। स्टमस, सर्विक्स एंड फंडस, ओके, दिस इज 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे देखा, ओके। ये जो एक्सटर्नल ओएस एंड जो इंटरनल ओएस है, तो रीजन बिटवीन द इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस जो हमारा एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, सर्विक्स होता है। ओएस मतलब जो होती है, ओएस मतलब क्या होता है, ओपनिंग होती है, ओके। सर्विक्स की इंटरनली ओपनिंग जो होगी उनको हम इंटरनल ओएस बोलेंगे। और सर्विक्स की जो आउटर ओपनिंग होगी जिन्हें हम ड्यूरिंग द स्पेकुलम एग्जामिनेशन देख सकते हैं, ओके। जब हम, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल जेनिटलिया के डिस्कशन में मैंने वहाँ पे आपको बताया था
ओके, आप वो पर्टिकुलर वीडियो देखिए, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के दौरान, ओके, पर वाजानल एग्जामिनेशन जिन्हें हम बोलते हैं, जिसकी एग्जामिनेशन हम अपने हाथ से कर सकते हैं, ओके, लेबिया मेजोरा के फोल्ड्स को टच करके अपने हाथ से हाइमेन ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ उसको देख कर, वजाना के ओपनिंग में फिंगर्स को डालकर वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज अगर रहेंगी तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हमने क्या बोला था, पर वजानल एग्जामिनेशन या फिर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। इंटरनल ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल्स के, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको देखने के लिए हमें स्पैकुलम की ज़रूरत होती है, ओके, स्पैकुलम एग्जामिनेशन जिन्हें हम बोलते हैं। तो उस एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल ओएस देख सकते हैं, ओके। तो रीजन बिटवीन द एक्सटर्नल ओएस एंड इंटरनल ओएस, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ओके। ये देखिए आपको जैसे कि दिख रहा है, फंडस अल्टीमेटली ये सॉलिड पार्ट वाला स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे कोई कैविटी वगैरह नहीं होती है, देयर इज़ नो एनी कैविटी फाउंड इन द फंडस, लाई अबोव द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ओके। तो जो ट्यूब अल्टीमेटली, ये देखिए जो ट्यूब, यहाँ से जो ट्यूब कनेक्टेड होता है हमारा, ओके, तो ट्यूब कनेक्टेड विथ आवर यूटरस, ओके, बट ट्यूब जो ट्यूब का जो कनेक्शन हो रहा है, जो फेलोपियन ट्यूब का जो कनेक्शन हो रहा है, यूटेराइन ट्यूब का जो कनेक्शन हो रहा है विथ आवर यूटरस, ओके, उस ट्यूब के ओपनिंग के बाद में जो रीजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन हियर, लाई अबोव द एंट्रेंस ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, ओके। यूटेराइन ट्यूब ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, और उसके ऊपर का जो रीजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। बॉडी वाला पार्ट कौन सा है, जो ट्यूब अंदर आ रही थी, ओके, जो ट्यूब यूटरस के अंदर आ रही थी, अल्टीमेटली वहाँ से इंटरनल ओएस के तक जो रीजन रहेगा, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ओके। स्टमक का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे विजुलाइज नहीं हुआ है, आप जस्ट समझ लीजिए कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स, जो कि अल्टीमेटली 0.5 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में, जिनको हमने क्या बोला, स्टमक बोला है। सर्विक्स इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर यूटरस, ओके। फ्रॉम द इंटरनल ओएस टू द एक्सटर्नल ओएस, इट हैज़ it has the uterine and vaginal parts. Vaginal parts continue with our vagina, and ultimately जो uterine part है, ओके, तो uterine part से सर्विस का जो अल्टीमेटली सर्विस कंटिन्यू विद आवर यूटेराइन पार्ट, एंड एक्सटर्नल जो पार्ट होता है हमारा, नॉट वी कैन से हियर एक्सटर्नल। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, सॉरी, सेम थिंग मैं बताऊँगा। सर्विक्स जो है अल्टीमेटली ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है, और इंटरनल ओएस से एक्सटर्नल ओएस के जो रीजन में जो आता है, हमको इनको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, यूटेराइन पार्ट एंड वजाइनल पार्ट। यूटेराइन पार्ट वाला वो पार्ट जो कि बॉडी ऑफ स्टमक ऑफ जो यूटरस जिससे जो अटैच होगा, ओके, जो कि अल्टीमेटली एक यूटरस का पार्ट है, दैट्स हमने यहाँ पे यूटेराइन पार्ट बोला। वजाइनल पार्ट उनको हम बोलेंगे जो कि अल्टीमेटली कंटिन्यू विद आवर वजाइना, ओके। मेजरमेंट एंड पार्ट्स ऑफ द यूटरस अगेन, तो ये देखिए बॉडी, दैट नथिंग बट बॉडी इज फर्दर डिवाइड द, ये देखिए जैसे यहाँ पे बताया कि कॉर्पस जो है नॉट बॉडी, बॉडी एक सिंगल पार्ट होता है, ओके। फंडस एंड बॉडी दोनों को मिलाकर हम कॉर्पस बोलते हैं, बट नॉर्मली वी आर टर्मिंग द टर्म द कॉर्पस टू बॉडी ओनली, ओके। बट यहाँ पे आपको समझना है कि कॉर्पस, फंडस और बॉडी दोनों को मिलाकर हमने बोला है, जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ में है, ओके। बॉडी प्रॉपर जो है, बॉडी प्रॉपरली इज अ ट्रायंगुलर इन रीजन, ओके, ट्रायंगुलर रीजन में है, लाई बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एंड द स्टमक, ओके। ये ओपनिंग ट्यूब है, ये ट्यूब की ओपनिंग है, और ये स्टमक की ओपनिंग है, इन दोनों के रीजन में जो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा बॉडी होता है, बॉडी ऑफ द यूटरस होता है। स्टमक इज कंस्ट्रक्टेड पार्ट 0.5 सेंटीमीटर का होता है। सर्विक्स मैंने आपको जैसे ये भी चीज़ें बताई दी है, बस ये रिटन फॉर्म में क्या लिखा गया आप समझ लीजिए। द सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटरस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक ऑफ द यूटरस। इट एक्सटेंड फ्रॉम द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस एंड एट द एक्सटर्नल ओएस विच ओपन इनटू द वजाइना, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट हैज़ द 2 पार्ट्स, यूटेराइन पार्ट एंड वजाइनल पार्ट। यूटेराइन पार्ट से वो कंटिन्यू रहता है, एंड वजाइनल पार्ट्स में इट कंटिन्यू विद आवर वजाइना, ओके। मेजर एज द 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। पार्ट ऑफ द यूटरस अगेन द सेम थिंग, कैविटी, बॉडी, सर्विक्स एंड फंडस, ओके। तो कैविटी जो होती है, द कैविटी ऑफ द यूटेराइन बॉडी इज अ ट्रायंगुलर, ओके, इट मेजर द 3.5 सेंटीमीटर।
मैंने आपको बताया बॉडी के पास 3 लेयर में वॉल रहती हैं, ओके, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इट इज़ ए सीरस कोट, ओके, एक अपर जो हमारे यूट्रस को जो कवर करके रखेगा एक्सटर्नली, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम एक मसल की लेयर होती है जो कि थिकन लेयर होती है एक पर्टिकुलर यूट्रस की, जिसकी वजह से हमारा चाइल्ड जो होता है हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर रहता है और वो क्या होता है, ग्रो होता है, ओके। देन थर्ड वन दैट इज़ नथिंग बट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एक ऐसा वॉल है, एक ऐसा लेयर है यूट्रस का जहाँ पे नर्व की सप्लाई और जो ब्लड वेसल की सप्लाई बहुत ही न्यूमरस या फिर बहुत ही रिच अमाउंट में रहता है, ओके। और जो हमारा फीटस होता है ना, जो हमारा पर्टिकुलर इम्प्लांटेशन होता है ना, वो भी एंडोमेट्रियम में ही होता है, ओके। और एक बात, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो जो बाहर निकलता है थ्रू वजाइना, ओके, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रिपरेशन वो अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम में ही होता है, ओके। एंडोमेट्रियम की पहले थिकनिंग होती है और अगर कोई ओवम जो सीक्रेट हुआ था अगर वो अनफर्टिलाइज रहता है तो अनफर्टिलाइज ओवम जैसे ही रहता है वहाँ पे तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से क्या होता है, जो थिकेंड हमारा एंडोमेट्रियम जो फॉर्म हुआ था वो अनथिकेंड हो जाता है, वो वहाँ पे फॉल ऑफ होता है और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फॉल ऑफ एंडोमेट्रियम की थिकनिंग चली जाती है और उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो रप्चर हो जाते हैं एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रप्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम स्पायरल आर्टरी और आर्कुएट आर्टरी बोलते हैं, जो कि एक ब्रांचेस हैं, ओके, एक पर्टिकुलर कॉमन आर्टरी की, तो अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाते हैं और वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो वो बाहर निकलते हैं, ओके। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, दिस आर द 3 लेयर्स ऑफ द बॉडी, ओके। द एंडोमेट्रियम इज अ चेंज टू द डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एंडोमेट्रियम के पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं, ओके, एंड दैट पार्ट का जो नाम चेंज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ डेसिडुआ, ओके। सर्विक्स, इट इज़ अ कंपोज मेनली ऑफ द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से हमारा सर्विक्स फॉर्म हुआ रहता है। इंटेंसिटिव टू टच, ओके, इनसेंसिटिव टू टच, हीट एंड ऑल्सो व्हेन इट ग्रास्प्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, ओके। बहुत ही वो इनसेंसिटिव टच होता है, बहुत ही एक डेलिकेट पार्ट होता है हमारा सर्विक्स, ओके। ब्लड सप्लाई ऑफ यूटरस, आर्टेरियल सप्लाई जो होता है हमारा पर्टिकुलर यूटरस को, यूटरन आर्टरी अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर हमारी यूटरन आर्टरी वन ऑन ईच साइड, ओके, इट सप्लाइड टू यूटरस, ओके। तो आर्टरी सप्लाई इज फ्रॉम द यूटरन आर्टरी, ओके। द आर्टरी अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द एंटीरियर इलियक। तो सेम थिंग अगेन बोलेंगे, ओके, डोंट वरी, वी विल वंस अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, ओके। तो ब्लड सप्लाई ऑफ यूटरस दैट नथिंग बट, कौन कौन से आर्टरी यूटरस को ब्लड सप्लाई करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली यूटराइन आर्टरी जो कि हमारे यूटरस को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि इंटरनली, ओके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनली इलियक आर्टरी की ब्रांचेस होती है, ओके, और कॉमन विथ सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ओके। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी की ब्रांचेस और यूटराइन आर्टरी की ब्रांचेस हमें क्या करता है, यूटरस को सप्लाई करता है, ओके। द यूटराइन आर्टरी क्रॉसेज द यूरेटर एंटीरियरली अबाउट 1.5 सेंटीमीटर अवे एट द लेवल ऑफ इंटरनल यूएस। तो वहाँ पे बता रहा है कि इंटरनल जो यूटराइन आर्टरी जो है वो क्रॉस करता है यूरेटर को, ओके। यूरेटर जो कि एक यूरिन को जो कैरी करके लेके जा रहा है अप टू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंटीरियरली अबाउट 1.5 सेंटीमीटर अवे एट द लेवल ऑफ इंटरनल यूएस, ओके। जो वेन है अल्टीमेटली जितने भी करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे मैंने देखा यूटराइन आर्टरी, इन दैट सेम में यहाँ पे यूटराइन वेन होगा जो कि ड्रेन करेगा अपना ब्लड इन द इंटरनल इलियक वेन, ओके। ये देखिए आप ये देख सकते हो, इंटरनल इलियक आर्टरी अल्टीमेटली वजाइनल आर्टरी में डिवाइड होती है एक ब्रांच, और एक ब्रांच यूटराइन आर्टरी में डिवाइड होती है, ओके। और ओवेरियन आर्टरी अल्टीमेटली एक ब्रांच होती है हमारे पर्टिकुलर एब्डोमिनल एवोटा की एक ब्रांच होती है, जिन्हें हम ओवेरियन आर्टरी बोलते हैं। ओवेरियन आर्टरी अल्टीमेटली सप्लाई टू द ओवरी, इट सप्लाई टू द यूटरस एज वेल, ओके, नॉट यूटरस एज वेल, एज पार्ट ऑफ द यूटरस, ओके। एंड इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है इसकी 2 ब्रांचेस होती है, यूटराइन आर्टरी एंड आवर वजाइनल आर्टरी। यूटराइन आर्टरी अल्टीमेटली इट सप्लाई टू द यूटरस एंड वजाइनल आर्टरी अल्टीमेटली इट सप्लाई टू द वजाइना, ओके। तो ब्लड सप्लाई टू द यूटरस वंस अगेन देख लेते हैं, ओके। तो
एब्डोमिनल एओर्टा के एक ब्रांचेस जिन्हें ओवेरियन आर्टरी बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली ओवेरी को सप्लाई करती है और अप टू द सम एक्सटेंट हमारे यूट्रस को भी सप्लाई करती है। इंटरनल इलेक की जो आर्टरी है, ओके, जिनका एंटीरियर जो डिवीजन होगा, ओके, ये वाला एंटीरियर जो डिवीजन है, ओके, ये देखिए जो एंटीरियर डिवीजन है, अल्टीमेटली उस एंटीरियर डिवीजन का एक ब्रांच जिन्हें हम यूटेराइन आर्टरी बोलते हैं, ओके, यूटेराइन आर्टरी, वो हमारे यूट्रस को सप्लाई करता है। और दूसरा ब्रांच हमारा क्या होता है, वजाइनल आर्टरी होता है, जो कि हमारे क्या करता है, वजाइना को सप्लाई करता है। ओके, तो ये देखिए जैसे एक इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है। पार्ट ऑफ द यूट्रस मैंने आपको बता ही दिया। अल्टीमेटली जो यूट्रस के जो पार्ट्स होते हैं, नॉट यूट्रस के पार्ट, हमारा जो यूट्रस होता है वो हैंगिंग पोजीशन में नहीं रहता है। एक ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो होता है, ओके, जिन्हें हम मेसोमेट्रियम बोलते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट यानी कि जो पेरी अल्टीमेटली जो पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारे इंटरनल, एक फीमेल के इंटरनल जेनेटेलिया को भी कवर करके रखता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रॉड लिगामेंट। ओके, अगर वो ब्रॉड लिगामेंट हमारे यूट्रस को कवर करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेसोमेट्रियम। ओके, अगर वो हमारे ओवरी को कनेक्ट करके रखेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेसो ओवेरियम। ओके, अगर वो फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करके रखेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेसोसल्फिंक्स। ओके, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में, बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है, टू डील विद द इंटरनल जेनेटेलिया। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब। द यूट्राइन ट्यूब भी इन्हें हम बोलते हैं, सिनोनिम्स, दैट इज कॉल्ड द यूट्राइन ट्यूब। द यूट्राइन ट्यूब आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, मेजर अबाउट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक पर्टिकुलर ट्यूब होता है, ओके, जो कि अल्टीमेटली कनेक्टेड होता है हमारे यूट्रस से, जिन्हें हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर का लंबा होता है ये। ओके, ये 10 सेंटीमीटर अगेन ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट्स होते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस आपको उतना याद रखना है। ओके, अगर आप दूसरी भी चीज़ याद करना चाहते हो तो जो मैंने नोट्स यहाँ पे ओपन किया है, जो मैं स्लाइड आपको जो दिखा रहा हूँ, आप उसमें देख के रीड आउट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ इनफ फॉर यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, ज़्यादा इतना डिटेल में आप कोई चीज़ से डील मत करिए। ओके, अलग अलग चीज़ को डिस्कस करने के लिए अलग अलग ईयर्स के अलग अलग फेज बताए गए। ओके, इच ट्यूब हैज़ गॉट 2 ओपनिंग, जैसे कि आप देख सकते हो 2 ओपनिंग रहती है। एक ओपनिंग हमारे यूट्रस में ओपन हो रहा है और दूसरा वाला जो ओपनिंग है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फॉर्म होता है। ओके, जिन्हें हम फिमरे बोलते हैं। अदर इज ऑन लेटरल एंड ऑफ ट्यूब। ओके, पेल्विक ओपनिंग और एब्डोमिनल ओस्टियम। ओके, तो ये क्या एब्डोमिनल ओस्टियम क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ ये सभी यूट्रस है, जिन्हें हम मेसोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि पूरे यूट्रस को कवर करके रखेगा। ओके, ये अल्टीमेटली क्या है, सॉरी, ये देखिए आप देख सकते हो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा स्टमक है। सब नेमिंग आपको याद रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो 4 पार्ट होते हैं ना हमारे फैलोपियन ट्यूब के, ये हमारा स्टमस होता है। एम्पुला वाला रीजन 5 सेंटीमीटर का होता है। हमारा एक स्टमस का रीजन आता है, एक इंटरस्टिशियल का रीजन आता है। ओके, तो देखिए पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, द पार्ट ऑफ द ट्यूब विच गो इनसाइड द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राम्यूरल। ओके, जो कि 1.25 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है। स्टमस वाला जो पार्ट है, ओके, स्टमस जो पार्ट होता है अल्टीमेटली वो 2.5 सेंटीमीटर का लंबा होता है। एम्पुला वाला जो पार्ट है वो 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एम्पुला ये देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा आपको दिख रहा है। और ये वाला जो पार्ट है इन्फंडिबुलम, मेजरिंग अबाउट 1.25 सेंटीमीटर, ये 1.25 सेंटीमीटर का लंबा होता है। इनकी जो डायमीटर होती है थोड़ी सी लंबी होती है कंपेरेटिवली विद अदर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो स्टमस की जो डायमीटर है वो 2.5 मिलीमीटर है, बट इन्फंडिबुलम की जो डायमीटर है वो 6 मिलीमीटर बताई गई है। ओके, थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज इसको जो फुल्ली मैच्योर जो ओवम है, जो कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है इन्फंडिबुलम के जो एंटीरियरली जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, जिन्हें हम फिमरे बोलते हैं, जो कि एक फुल्ली मैच्योर पर्टिकुलर ग्राफियन फॉलिकल से जो रप्चर होगा हमारा फुल्ली मैच्योर जो ओवम, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड बन गया है स्ट्रक्चर्स। ओके, थोड़ा सा ब्रॉड रहता है ये स्ट्रक्चर। और एम्पुला के रीजन में, इस रीजन में हमारा फिमरे
जो फिंगर जो प्रोजेक्शन है उसको फुल्ली मैच्योर ओवम को कलेक्ट करता है और यहाँ तक लेके आता है, और जो हमारा स्पर्म होगा वो कैरी होके यहाँ तक आता है, और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, आपको क्या याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला और हमारा ये वाला जो पार्ट है इन्फंडिबुलम। ओके, आपको लेंथ भी पता होना चाहिए। इंटरस्टिशियल जो पार्ट है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है, स्टमस वाला जो पार्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एंड लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो एम्पुला की होती है, और 1.25 सेंटीमीटर सिमिलर विद आवर इंटरस्टिशियल दैट इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम। हालांकि इसका जो डायमीटर होता है कंपेरेटिवली अदर इनकी डायमीटर ज़्यादा होती है। ओके, जैसे कि आप देख भी सकते हो जो एरिया इनका थोड़ा सा ब्रॉड है। ओके, क्यों ब्रॉड है? क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इनको फुल्ली मैच्योर ओवम कलेक्ट करना है विथ आवर ओवरी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये अल्टीमेटली ये लिगामेंट है जो कि अल्टीमेटली हमारे यूट्रस को अटैच करके रखा हुआ है, और ये ओवरी जो कि हैंग कंडीशन में नहीं रहता है। ये जितने भी ब्रॉड लिगामेंट होते हैं ना, जो मेजो ओवेरियम है, ओके, मेजो ओवेरियम द लिगामेंट विच अटैच विद द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। ओके, वो अल्टीमेटली इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर एक फीमेल के बॉडी में वो एक वेल मैनर में प्लेस रहते हैं। अदरवाइज अगर कोई लिगामेंट, अगर कोई स्ट्रक्चर्स अगर इनको कोई होल्ड करके नहीं रखेगा तो ये फॉल ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्हें फिमरे बोलते हैं। इन्फंडिबुलम का ये पार्ट है, और एंड ऑफ द इन्फंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इनका बना हुआ है। ओके, तो इन्फंडिबुलम का एंड पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बनता है, जिन्हें हम फिमरे बोलते हैं, जो कि फुल्ली मैच्योर ओवा को कलेक्ट करने के लिए बना हुआ रहता है। ओके, और इनके अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो इनका जो स्क्वामस जो एपिथेलियम का जो लेयर होता है ना, वो अल्टीमेटली सिलियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सिलियरी स्ट्रक्चर की वजह से जो ओवा यहाँ से जो कैरी होने वाला है वो इस रीजन में जाता है। ओके, फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द जाइगोट थ्रू इट्स सिक्रेशन। ओके, जाइगोट भी कहाँ फॉर्म होता है? फैलोपियन ट्यूब में फॉर्म होता है। ओके, स्पर्म कहाँ पे आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओवम कहाँ पे आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ओके, आर्टेरियल सप्लाई की अगर बात करें तो ओवेरियन आर्टरी एंड यूटेराइन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द आवर एब्डोमिनल एवोटा। ओके, एंड यूटेराइन आर्टरी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इलियक आर्टरी। ओके, वीनस रीजन की अगर बात करें तो पैम्पेनिफेरम प्लेक्सस जो होते हैं, ओके, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द वेन। ओके, उस पर्टिकुलर प्लेक्सस में जो यूट्राइन वेन एंड ओवेरियन जो वेन होते हैं ना वो ड्रेन करते हैं। ओके, ओवरी एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरनल जेनिटलिया, द ओवरी आर पेयर सेक्स ग्लैंड और गोनाड्स इन द फीमेल। ओके, दे आर द इंट्रा पेरिटोनियम आलमंड शेप ऑर्गन्स। ओके, वो पेरिटोनियम के अंदर रहते हैं ओवरी। इच ग्लैंड इज ओवल इन शेप, जैसे कि आपने देखा वो ओवल इन शेप रहते हैं, पिंकिश ग्रे कलर के रहते हैं। उनकी लेंथ, डायमीटर और उनकी जो थिकनेस है ये 3x2x1 रहता है। दैट नथिंग बट वो 3 सेंटीमीटर लेंथ के 2 सेंटीमीटर ब्रेथ और उनका 1 सेंटीमीटर क्या होता है? थिकनेस होता है। इच ओवरी प्रेजेंट हैज़ अ 2 एंड, ट्यूबल एंड एंड यूटेराइन एंड। यूटेराइन एंड कनेक्ट विद द लिगामेंट एंड ट्यूबल एंड जो है अल्टीमेटली इट कनेक्ट विद द फीमरे। अल्टीमेटली ओवरी जो कंसर्न होता है वो ओवोसाइट्स एंड स्टेरॉइडोजेनेसिस में कंसर्न होता है, क्योंकि जैसे ही फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं ना, जैसे ही फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ओवरी किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होता है? फॉर द स्टेरॉइडोजेनेसिस एंड फॉर प्रोड्यूसिंग द ओवोसाइट्स। ओके, ये 2 काम के लिए हमारा ओवरी मेन रोल प्ले करता है। जैसे ही एस्ट्रोजन अगर डेवलपमेंट होगा, जो अल्टीमेटली जो हमारे एंडोमेट्रियम है उनकी थिकनिंग स्टार्ट होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के जैसे क्या होता है वहाँ पे फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ओके, तो वो जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना दैट इज प्रोड्यूस बाय आवर ग्राफेन फॉलिकल, दैट इज प्रोड्यूस बाय आवर नंबर ऑफ फॉलिकल्स। ओके, तो ड्यूरिंग द जब वहाँ पे GnRH, FSH, ओके, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जब सीक्रेट करता है उसको, तो वहाँ पे फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, फॉलिकल मैच्योर होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस मैच्योरेशन क्या होता है, जो फॉलिकल होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ओके, तो ये जो फॉलिकल है ये अल्टीमेटली कहाँ पे है?
ये कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी के अंदर रहते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवरीज, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड हाइलम। ओके, दीज आर द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवरीज। तो स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। तो बिफोर रीडिंग दैट थिंग्स लेट्स सी द डायग्राम। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो ग्राफेन फॉलिकल ग्राफेन फॉलिकल तो एक मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं। तो अल्टीमेटली प्रीमोडियल फॉलिकल, ओके, प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो छोटी छोटी आपको फॉलिकल दिख रहे हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। अल्टीमेटली प्रीमोडियल फॉलिकल अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल अल्टीमेटली कन्वर्ट इन द डेवलपिंग फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, और बाद में यही फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं, जिनके अंदर एक सेकेंडरी ओवोसाइट हमारा रहता है। ओके, मैच्योर ओवम रहता है हमारा। ओके, और यही ग्राफेन फॉलिकल जब रप्चर होता है, ये मैच्योर यानी कि जो सेकेंडरी ओवम, जो मैच्योर हमारा ओवम है, ये रिलीज़ होता है, और हमारा जो इन्फेंटिबुलम का जो फिंगर वाला जो प्रोजेक्शन था वो क्या करता है, रिसीव करता है। ओके, और ये रेसिडुअल पार्ट आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफेन फॉलिकल, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल इन टर्न इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, और जो ओवम, जो मैच्योर ओवम जो रिलीज़ हुआ है, वो फेलोपियन ट्यूब में अगर किसी स्पर्म के साथ अगर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगा वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। अदरवाइज अगर जो ओवम मैच्योर ओवम जो फेलोपियन ट्यूब में गया है और वहाँ पे कोई स्पर्म अगर नहीं आया है, तो दैट ओवम विल बी एक्सपायर विद इन 48 आवर। ओके, विद इन 48 आवर वो एक्सपायर हो जाता है, वो अनफर्टिलाइज यानी कि या वो कैपेबल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, और अल्टीमेटली जो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो सीक्रेट करने वाला था, वो अभी सीक्रेट नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली टर्न इनटू द कॉर्पस अल्बिकन्स। ओके, वाइट स्ट्रक्चर्स वो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये देख सकते हो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्जन होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर कोई फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस अल्बिकन्स में वो उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो जैसे आपने देखा कॉर्टेक्स जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव पीरियड मतलब पीरियड प्यूबरिटी टू मेनोपॉज, इनको हम क्या बोलते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलेंगे इन फीमेल। ओके, एंड द कॉर्टेक्स इज स्टूडेड विद द न्यूमरस फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, जैसा मैंने आपको दिखाया। दीज आर द रिलेट टू द सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन। ओके, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। द स्ट्रक्चर्स इंक्लूड प्राइमोडियल फॉलिकल, मैच्योरिंग फॉलिकल, ग्राफेन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकन्स। ओके, मेडुला जो रीजन होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ओवेरियन आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, सप्लाई करता है। वीनस ड्रेनेज की अगर बात करें तो ओवेरियन वेन जो है अल्टीमेटली पैम्पेनिफेरस जो प्लैंक्सेस है, जो कि एक वेन के द्वारा बना हुआ नेटवर्क है। ओके, उनके अंदर वो ड्रेन करता है टू फॉर्म द ओवेरियन वेन विच ड्रेन इन द इंफीरियर वेना कावा, जो कि अल्टीमेटली पैम्पेनिफेरम जो प्लेक्सेस है, जो कि एक नेटवर्क है जो कि वेन से बना हुआ है, वो अल्टीमेटली किस में अंदर ड्रेन करेगा, वो इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करने वाला है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी जैसे कि आपने देखा, ये हमारा क्या है, मेडुला वाला स्ट्रक्चर्स है, अल्टीमेटली वो एपिथेलियम के टिश्यू से बना हुआ है। ओके, और जो कॉर्टेक्स का जो रीजन है आप ये देख सकते हो, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, बाद में ग्राफेन फॉलिकल में ये आपको मैच्योर होता दिखाई देता है, और बाद में इस ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में ही जो हमारा जो मैच्योर ओवम है, ओके, ये अंदर रहता है। और जैसे ही वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद रप्चरिंग जो पार्ट होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ तो दैट टर्न इनटू द कॉर्पस अल्बिकन्स। ओके, अभी पाउच ऑफ डगलस की अगर बात करें तो वेसिको यूटेराइन पाउच और रेक्टो यूटेराइन पाउच, ऐसे 2 पाउच होते हैं। पाउच मतलब एक स्पेस, एक एरिया। ओके, तो यूटेरो वेसिकल पाउच जो कि यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में है। ओके, एक एरिया जो कि यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में है, और रेक्टो यूटेराइन पाउच जो कि एक रेक्टम और यूटेरस के बीच में है, जिन्हें हम पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ओके, तो पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, दिस इज अ नैरो पेरिटोनियल सैक इन द पेल्विक कैविटी सिचुएटेड इन द रेक्टो यूटेराइन स्पेस। ओके, ये स्पेस है जो कि हमारे पर्टिकुलर पेल्विक कैविटी में ही रहता है,
जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलते हैं। ओके, तो लैप्रोस्कोपी व्यू ऑफ ओवरीज, जैसे आप देख सकते हो लैप्रोस्कोपी क्या होता है, लैप्रोस्कोपिकल हम मार्क करते हैं एक फीमेल के एब्डोमिनल रीजन में, हम क्या करते हैं लैप्रोस्कोपी करते हैं, यानी कि एक होल करते हैं, एक होल क्रिएट करते हैं, और उस लैप्रोस्कोपी होल करने के बाद वहाँ पे लैप्रोस्कोपी के एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि हम डालते हैं। डालने के बाद वो उस लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है, कैमरा वगैरह लगा हुआ रहता है, जो कि वो पूरे स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज करता है और उस कैमरे के थ्रू हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली लैप्रोस्कोपी व्यू में ये जो देखिए आपको ओवेरियन सिस्ट हमारे लेफ्ट ओवरी में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और लेफ्ट ओवरी में ओवेरियन सिस्ट बना हुआ है, जैसा कि लैप्रोस्कोपिक व्यू में दिख रहा है। ओके, ये नॉर्मल है। लैप्रोस्कोपी व्यू ऑफ अनदर ओवरीज। ओके, तो that is regarding for today's class, guys. Here we discuss the internal genitalia in detail. We covered the ovaries, we covered the fallopian tube, we covered the uterus, we covered the vagina. हमने यहाँ पे एक एक के वॉल के एक एक पार्ट्स में एक एक थिंग्स को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। ओवरी के कितने पार्ट्स, सर्विक्स, मेडुला, जो भी हमारा हाइलम पार्ट है। ओके, हमने फैलोपियन ट्यूब के पार्ट देखे, इंटरस्टिशियल, इंट्राम्यूरल जिन्हें हम बोलते हैं, स्टमस, देन वी हैव सीन द एम्पुला, इनफंडिबुलम, फेम्ब्रे। ओके, ये सभी किसके पार्ट है, ये सभी हमारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है, जो कि 10 सेंटीमीटर के लेंथ में इनका डिवीजन होता है। एक 1.25 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर, एक हमारा 5 सेंटीमीटर होता है, एक हमारा 1.25 सेंटीमीटर होता है। ओके, हमने यूटेरस देखा, यूटेरस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फंडस, जिनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है, सॉलिड पार्ट होता है। ओके, देन वी हैव सीन द बॉडी ऑफ द यूटेरस। ओके, देन मैंने आपको बताया वहाँ पे स्टमस, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूटेरस, जो कि 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ में वो रहता है। ओके, बाद में मैंने सर्विक्स आपको बताया, जो कि इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस के बीच के एरिया में जो कवर होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। तो दैट इज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे ये पूरे इंटरनल जेनिटलिया को यहाँ पे कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे आपको कवर करके दिया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, यू कैन गिव फ्रीली टू मी, ओके, तो इन कमेंट बॉक्स। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस, थैंक यू।